Welcome to Code of India. Welcome to Code of India. Today we are going to teach you. Today we are going to teach you marketing basic concept. About the multimedia marketing basic concept and some tips and tips of window file folder. Tips and tips of window file folder browsing. How to browse the window file folder. Window file folder. How to talk with the window file folder. Multimedia marketing is the essential tool. Multimedia marketing is the essential tool to make understand the information between the server to server. The information between the server to server. Anyone can understand and anyone can understand objective about the matter of description of objective of via description of other person via www. It is widespread of mobile application. That due to the expand of mobile application, the mobile internet app. Most of the country are using the mobile internet and app. Well aware about the usage of the ad media through the mobile internet. So this is browsing. The most cheapest way to go to reach to the. So this is the most cheapest way to go to reach to the consumer's end. To make understand about the utility of your product for that purpose, which you are going to do marketing for that purpose. So before going to that about the multimedia marketing, you see the here engage. Lot of companies are to help the other engage to help the other company for the promotion of their product. When a user, when an ordinary guy having the internet mobile through WhatsApp, they can view their product through Twitter, through WhatsApp, through Facebook, through Twitter, through internet browsing. So first of all, you have to know about the file and folder. On Windows 10. We are right now. You might have on Windows 10, Windows 7. You might have in your computer Windows 7, almost the or Windows XP and the logics. Almost the analogy and the logics are the same. If you are having a basic concept, file folder you see in the Windows 10 at the bottom. That what is a file folder you see in the Windows 10 at the bottom? This portion, this yellow color. This is called Window Explorer. This is called Window Explorer. In Window Explorer, in the first menu of the left side pane is quick access. That means what? आपका जो यहाँ 24 घंटा पहले जैसा कुछ देर पहले जो या 24 घंटा पहले जैसा आपका कंप्यूटर का सेटिंग है, हिसाब से वैसा सेटिंग आपका हिसाब से जो फाइल आप खोले हैं वो फाइल का आपको यहाँ लिस्ट मिल जा रहा है नीचे में दाहिना पैन के नीचे तरफ। आप बार बार खोलते हैं कोई फाइल तो कोई एक्सेस में वो फाइल यहाँ बता देता है कि कितना बार आप खोले हैं। इसको 10 बार खोले, विंडो रीड कर रहा है तो उसको प्रायोरिटी, इसको 10 बार खोले हैं, इसको 5 बार खोले हैं तो उसको प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर नीचे अरेंजिंग, जो ज्यादा खोले ऊपर रहता है, जो कम खोले नीचे रहता है। बहुत सारे पैन है, ये देखिए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ बहुत सारे पैन है, ये देखिए ये मेनू बार है, मेनू टैब है, हर एक मेनू टैब में और टूल है, हर एक मेनू टैब में एक टूल है जिसका जो एक्टिव होने का है अब ये डिसेबल है, जो कि टूल जिसका जो एक्टिव होने का है अब ये डिसेबल है, जो कि कुछ सिलेक्ट नहीं है। यहाँ सिलेक्ट करके देखिए कुछ एक्टिव हो गया, माउस को क्लिक करते हैं, फिर हम बाहर डिसलेक्ट कर देते हैं, माउस को क्लिक करते हैं, यहाँ
डिसेबल हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि आपका जो यहाँ है कि हम किसी को, तो यहाँ देख रहे हैं ना कि आपका जो यहाँ है कि हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से वहाँ टूल बार में बटन जो एक्टिव होता है डिसएक्टिव होता है। सिलेक्ट नहीं करते हैं, डिसलेक्ट कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, दिखाई पड़ता है टूल बार में जो बटन ये है डिसेबल हो गया, टूल है वो डिसेबल हो गया। उसी प्रकार से बाएं तरफ भी सिलेक्ट करते कुछ न कुछ दाहिना पैन में देखिए चेंज हो रहा है। हम बाएं तरफ में डेस्कटॉप मारे तो हमारे डेस्कटॉप में क्या क्या है, हमारे डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर में जो चीज है वो चीज हमको यहाँ बता दे रहा है कि डेस्कटॉप में आपका ये सब पैन जो देख रहे हैं, यानी कि ये आउटपुट हो गया, ये वाला पैन जो देख रहे हैं ये आउटपुट हो गया। ये जो यहाँ पीसी जो लिखा हुआ है कि अभी आप कहाँ है, अभी आप डेस्कटॉप में पीसी दिस पीसी डेस्कटॉप। हम डाउनलोड मारते हैं तो बोल रहा अभी आप कहाँ है, आप दिस पीसी डाउनलोड में है, डाउनलोड फोल्डर में क्या समझ गए ना। और यहाँ क्या था डाउनलोड फोल्डर में क्या क्या है, तो ये विंडो एक्सप्लोरर क्या हो गया, सब दिखाई पड़ रहा है। तो ये विंडो एक्सप्लोरर क्या हो गया, विंडो फाइल फोल्डर एक्सप्लोरर मतलब कि हम विंडो का फाइल फोल्डर का एक्सप्लोर खोजबीन कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ जाएंगे कि मान लो आपका हम यहाँ पीसी में मार दिए, माई पीसी में माई कंप्यूटर इसमें मार दिए, और यहाँ अगर हम सी ड्राइव में मार दिए, देखो यहाँ दिखा दे रहा है एड्रेस बार में ठिकाना में दिस इज एड्रेस बार कि हम माई डिस्क पीसी एंड लोकल डिस्क सी ड्राइव में हम फार्डा मार देते हैं। ऐसे मान लो कि हम यहाँ मार देते हैं और मारने के बाद देखो यहाँ देखो पाथ बता दिया जा रहा है। उसके बाद हम कहाँ गए थे, ईएसडी में गए थे, तो कहाँ गए हैं विंडो में गए, ठीक है, और अंदर चले जाते हैं क्या बोल रहा है, उसका कहाँ घुस गए हम बूट में घुस गए। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, ठिकाना दिखा रहा है। अप एरो मतलब बूट से बाहर भागेगा तो ये अप एरो मार देगा तो बूट भाग गया, विंडो आ गया, फिर अप मारे तो क्या होगा विंडो भाग गया, ईएसडी आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी माई डॉक्यूमेंट डाउनलोड फोल्डर कहीं भी जा सकते हैं, आपका क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। So this is the Window Explorer in nutshell. You try to understand on practice. Let us come to the multimedia marketing. You have to learn that you have to learn free. All tutorials from Code of India. You can go through it. All tutorials are free from here. You can go through it and learn everything free of cost. All the courses are free, and all the courses are free, and there is a special classes multimedia marketing also that is uploaded for the multimedia marketing also that you can browse and learn the multimedia marketing. आप समझ सकते हैं, इसके लिए कोई आपको ट्यूटर का जरूरत नहीं है। स्काइप थ्रू कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है तो आप लोग स्काइप थ्रू स्पेशल क्लास के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो मल्टीमीडिया मार्केटिंग में है कि क्यों करना है, आपको जानना है कि क्यों करना है। Why multimedia marketing is required? What is the future? What are the way? What is the future? टाइप का मल्टीमीडिया मार्केटिंग है। What are the way? कितने टाइप का मल्टीमीडिया मार्केटिंग है? मल्टीमीडिया मार्केटिंग जो है कि हम लोग को मोस्टली जो है कि मल्टीमीडिया मार्केटिंग जो है कि हम लोग को जो www देख रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब एक एसोसिएशन है। इन दिस एसोसिएशन lot of companies are member. In this association lot of companies are member. There is a membership charges that you can be also association member if you deposit that amount, if you fulfill the requisite criteria जो इसका जरूरत है मेंबर बनने के लिए, जिसको पूरा कर पाते हैं तो आप भी मेंबर बन सकते हैं, आपका कंपनी मेंबर बन सकता है। सो थ्रू दिस www एक प्लेटफॉर्म है, ब्राउजर वो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउजर। उसके जरिए हम लोग कोई भी कंज्यूमर्स, कोई भी यूजर्स, इंड यूजर्स जो कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो इसके जरिए अपना एक इन लोग का एग्रीमेंट सब कुछ देख पाते हैं। हिसाब से इन लोग का एग्रीमेंट है कि ऐसा ऐसा
हिसाब से ब्राउजर बना सकते हैं आप, इसको आप हैकिंग नहीं कर सकते हैं। ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन ये एसोसिएशन बना दिया है, सबको फॉलो करना है। जो ब्राउजर बनाता है सॉफ्टवेयर कंपनी का बात है, आपको जानना है जो भी हो, बहुत डीप का बात है। आपको जानना है कि WWW के जरिए आपको पूरा देख ना, पूरा विश्व में आप किसी से भी बात कर सकते, जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते। फुटबॉलर है तो फुटबॉलर, एक फुटबॉलर है, कब आपसे बात कर पाएगा? तो फुटबॉलर यदि आप फुटबॉल का, कब आपसे बात कर पाएगा? ओलंपिक, यदि आप फुटबॉल का तो फुटबॉल आपको ओलंपिक कुछ प्रोग्राम कर देंगे तो फुटबॉल आपको जान जाएगा। तो आपको देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस, तो आपको देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको किसके पास पहुंचना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करता है दिन भर, कौन सा चीज जो बार बार देखता है, उस चीज में यदि अपना कुछ डाल देंगे वो तो सब, तो आदमी आपको पहचान जाएगा। जो फुटबॉल प्लेयर है वो तो सब कुछ देख नहीं सकता है, जो फुटबॉल प्लेयर है मोस्टली अपना 80% फुटबॉल का ही देखेगा, वो तो हॉकी का कम देखेगा। फुटबॉल प्लेयर देखते हैं कि हमारा अमेरिका में, तो यदि हमको फुटबॉल प्लेयर देखते हैं कि हमारा अमेरिका में या हमारा वेस्ट बंगाल में फुटबॉल प्लेयर का ब्राउजर बहुत ज्यादा है, बहुत आदमी इस टाइम में फुटबॉल का देख रहा है, उस टाइम में यदि हम अपना ऐड मार देते हैं वहाँ तो हमको पहचान जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जगह है, यहाँ आपको जानना, तो ये बहुत बड़ा जगह है, यहाँ आपको जानना है कि मल्टीमीडिया मार्केटिंग कितने टाइप का होते हैं, कि आपका टास्क क्या है। एक्चुअली आप मल्टीमीडिया मार्केटिंग में आप क्या करना चाहते हैं? पहला क्या है कि आपका पर्पस क्या है, कि पहला क्या है कि आपको फोकस करना है कि आपका जो काम है, आपका जो जिस प्रोडक्ट को लेकर आप मल्टीमीडिया मार्केटिंग करेंगे उसका क्या क्या फोकस पॉइंट है, कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करने से आप क्या इसके जरिए बोलना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करने से आपका हेल्थ ठीक होगा या आपका रुपया का फालतू वेस्टेज कम हो जाएगा, तो कुछ तो आपका एस्पेक्ट होगा। फोकस पॉइंट क्या है, तो वो सबसे बड़ा चीज है का फोकस पॉइंट क्या है। इसमें जितना आप फोकस पॉइंट को जितना डिफाइन, तो इसमें जितना आप फोकस पॉइंट को जितना डिफाइन कर पाएंगे, वो फोकस पॉइंट जितना जो यूजर है, जो आपका मोबाइल यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है कंप्यूटर में, उसको जितना पसंद आएगा, उसका मन का बात होगा तो आपको लाइक करेगा, लाइक करेगा तो आपको पहचानेगा, आपको पहचानेगा तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, इसको निकालना। स्टैटिकल एप्लीकेशन बहुत हाई इन मेमोरीज का बात है कि कैसे हम इतना बड़ा पॉपुलेशन में अपना पर्टिकुलर पैरामीटर का कैसे हम ब्राउज कर लूं, कैसे समझ जाऊं कि यहाँ इस लोकेलिटी में इस टाइप का पोस्टिंग करने से इतना आदमी देख सकता है। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हाई इनकम, लेकिन आपको हाई इनकम मैनेजमेंट जो है वो आपको ग्राफिक्स दे देगा कि कहाँ से क्या करना है। आपको तो मल्टीमीडिया मार्केटिंग करना है जैसा हायर ऑफिशियल बोलेगा, तो जिस कंपनी भी आप काम करेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि सबसे बड़ा चीज है कि क्या क्या की पॉइंट है कि आपको जानना है, क्या क्या की पॉइंट है कि आपको जानना है कि आपका एस्पेक्ट में इस कोर्स में आपको जानना है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपके पास सीधा समझ में आ रहा है, ये जस्ट डिजिटल मार्केटिंग आपके पास सीधा समझ में आ रहा है, you just try to understand it. That means that you can send any sort of information of your product viewable digitally. You can make it viewable of the individual machine about your product detail. So सबसे बड़ा बात है कि आप मार्केटिंग, सबसे बड़ा बात है कि आप मार्केटिंग करेंगे, आप कोई आदमी आया हुआ है फेसबुक करने के लिए, और उसको बोलिएगा अगर पढ़ाई लिखाई करो, आपका प्रोडक्ट का देखेगा तो क्या पढ़ाई लिखाई करेगा? वो फेसबुक आपका प्रोडक्ट का देखेगा, वो इंटरनेट क्यों कर रहा है? वो फेसबुक करने के लिए आपको जानना है कि वो इंटरनेट क्यों कर रहा है। वो इंटरनेट इसलिए कर रहा है कि उसको फेसबुक करना है। फेसबुक में क्यों आया है? कुछ हंसना है, क्योंकि उसको कुछ फोटो शेयर करना है, कुछ हंसना है, कुछ लविंग करना है। आप हार्डकोर एजुकेशन का बातचीत करेंगे, उसमें यदि आप हार्डकोर एजुकेशन का बातचीत करेंगे तो आपको प्रोडक्ट को क्या करेगा? रिजेक्ट करके भाग। प्रोडक्ट को ऐसा सजाना है
कि उसको देखकर हंसी लगे। आपको प्रोडक्ट को ऐसा सजाना है कि उसको देखकर हंसी लगे और पढ़ना चालू कर दे। Why are people going? क्योंकि वो इंटरनेट आया है। Why are people going online? सबका तो एग्जाम्पल दिए फेसबुक का। कोई आदमी फुटबॉल प्लेयर है, तो कोई आदमी पॉलिटिक्स के लिए इंटरनेट खोलता है, कोई आदमी धर्म के लिए, रिलीजन को जानने के लिए इंटरनेट खोलता है। तो ऐसा परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा आपको किसका आपका टारगेट ऑडियंस क्या है और इंटरनेट क्यों खोला है। आपको दे सकते हैं तो आपको, यदि उसका मन का पसंद का यदि आपको दे सकते हैं तो आपको लाइक करेगा, नहीं देगा तो नहीं लाइक करेगा। तो बुद्धिमानी आपका है कि आप कैसा मार्केटिंग का टूल्स बेनिफिट है। तो ये जो बेनिफिट है, अपने मल्टीमीडिया मार्केटिंग के जरिए किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने मल्टीमीडिया मार्केटिंग के जरिए किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको आनंद मिल रहा है, आपको लाइक कर रहा है, आपको जान रहा है, तो दैट इज द बेनिफिट। क्यों आज जो है कि टीवी पे तो मारते हैं, न्यूज़पेपर आज जो है कि टीवी पे ऐड मारते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड मारते हैं, रुपया खर्चा करते हैं और आदमी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। आप इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डिजिटल मीडिया। जो भी है तो हार्ड कॉपी जो है कि जो भी है कि आपको जानना है कि आप जो हम जो यहाँ जो वेबसाइट जो आपको दिखाए कोड ऑफ इंडिया का, यहाँ आपका ऐसा वेबसाइट बनाना है, कोई भी गूगल हमको ऐसा वेबसाइट बनाना है कि कोई भी गूगल में, याहू में, बिंग में सर्च करे कुछ स्पेशल कीवर्ड का कि हमको माइक्रोसॉफ्ट पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट टाइप करे तो कोड ऑफ इंडिया सामने आ जाए और वो हमारा सब ट्यूटोरियल फ्री पढ़ ले तो उसको बोलते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये स्पेशल कोर्स है बोलते सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपका नाम, आपका वेबसाइट का नाम, आपका फेसबुक का वेबसाइट का नाम, आपका ट्विटर का जो है, आपका जो इंस्टाग्राम का जो है, उस सर्च इंजन में प्रोपागेट कर रहा है हाई की वैल्यू में। ये आपको तो क्लियर, ये आपको लेने के लिए इसका क्लियर कोर्स है, आइडिया लेने के लिए इसका एक स्पेशल कोर्स है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यदि उसके बाद जो भी है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यदि उसके बाद जो भी सर्च इंजन प्रोवाइडर है, गूगल एक सर्च इंजन प्रोवाइडर है, बिंग एक सर्च इंजन प्रोवाइडर है, आप भी अपना ऐड जो है कि बोलेंगे भाई हमको 1 महीना के लिए इस स्टेट का स्कूल ओपनिंग है, स्कूल में स्टूडेंट को लाना है, एडमिशन गोइंग ऑन, ऐड देना है, तो आप बिंग में चले जाएंगे, बिंग में ऐड है, ऐड आप दे दीजिए। वो ऐड आपका जो है डिफरेंट यूजर उस इलाका का, उस स्टेट का जो भी इंटरनेट करेगा उसके पास पहुंच जाएगा। वो क्लिक किया आपका ऐड में तो उसको बोलते हैं क्योंकि आपको जो पेमेंट पे पर क्लिक, क्योंकि आपको जो पेमेंट करना है कोई भी इंडिविजुअल क्लिक कर दिया इसके ऊपर में, ये मान लीजिए ये वाला ऐड है, यहाँ देख HTTP लिखा ऐड है, कोई कंपनी का नाम है, यहाँ हम क्लिक कर दिए तो जो ऐड दिया है इस जगह में पेमेंट उसको पर पे क्लिक को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए बिडिंग होता है, वो टूल्स है। आप गूगल का एडवर्ड में जाएंगे, आप बिंग का एड बिंग ऐड में जाएंगे, सबका टूल्स है, टूल्स में उन लोगों का प्रोग्राम किया हुआ है कि यदि इंडिविजुअल उसको क्लिक करता है तो आपको पैसा देना है। पैसा आपको वहाँ विजेट वगैरह लगा हुआ है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी लगा हुआ है, आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, रियल टाइम पेमेंट कर सकते हैं, जैसा टूल है वैसा टूल का पेमेंट ऑटोमेटिक आपका पेमेंट से माइनस हो जाएगा। क्लिक करते ही आपको बाद में आप जब लॉग इन करेंगे वहाँ आप देख पाएंगे कि इतना रुपया हमारा माइनस हो गया है, यहाँ से इस एरिया में आदमी क्लिक किया है, कितना आदमी क्लिक किया तो उसको बोलता है पर पे क्लिक। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज का डेट में, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बड़ा आज का डेट में आप लोग जानते ही है, फेसबुक बहुत बड़ा पेनिट्रेशन है। आज के डेट में फेसबुक हाईएस्ट यूजर वर्ल्ड का है और पर्टिकुलरली इंडिया में तो कोई बात ही नहीं है, सबके अकाउंट में मोबाइल में फेसबुक चल रहा है। यानी कि आप फेसबुक में मार्केटिंग करते हैं, आप ट्विटर में मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया मतलब आपका हो गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जानते ही है, व्हाट्सएप, दीज आर द सोशल मीडिया टूल्स। इसके जरिए हम कहीं से भी कहीं से शेयरिंग कर सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं,
किसी का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, अपना जो जैसा अपना कम्युनिटी के हिसाब से अपना जो जैसा हम मेंबरशिप लेना चाहते हैं वहां जाकर के मेंबरशिप ले सकते हैं। तो दैट आर द सोशल मीडिया टूल्स, एंड वहां जाकर के मार्केटिंग करना मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट, आपको डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट के बारे में जो आपको जैसे बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग मेजरमेंट के बारे में जो इसको हायर मेमोरीज का बात है कि पॉपुलेशन निकालना एज पर योर आस्किंग पैरामीटर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड यूटिलिटी, you have to define your parameter, then you have to calculate prospective client कितना हो सकता है उस एरिया उस लोकेशन में, and digital marketing so involvement. This is you might have understand that so there are a lot of users. You might have understand that there are a lot of users throughout the world through the network. You can connect from computer to computer, man to man, and mobile to mobile. And this is the thing that little bit you understand about the definition. Little bit digital marketing. Definition of the digital marketing. So digital marketing is the process of building and maintaining customer relationship. So digital marketing is the process of building and maintaining customer relationship. Generate sales, capture customer, and searching. Generate sales, capture customer, and searching the internet for answer. इतना देर से आपको जो समझा रहे हैं कि आपको जो प्रोडक्ट, इतना देर से आपको जो समझा रहे हैं कि आपको जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, आपको उसके चॉइस के हिसाब से आपको लाइक उसमें ऐड देना है जिससे आपको लाइक करें, आपका प्रोडक्ट सेल हुए। दिस इज अ डिजिटल मार्केटिंग, द वे वन ऑफ द वे दैट यू कैन बिल्ड एंड मेंटेनिंग द कस्टमर रिलेशनशिप। गुड लाइकिंग ज्यादा रहे और खरीदे, वो आपका प्रोडक्ट के बारे में जाने और खरीदे। वेरी सिंपल एंड सो यू शुड राइट वेरी सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश। आपको कोई डिक्शनरी का इंग्लिश बोलना नहीं है, बहुत ही सिंपल। आपका जो ग्राफिक हो जाए बहुत ही सिंपल होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, जिससे उसको पता चल जाए आप क्या बोलना चाहते हैं। ग्राफिक को देखकर, फोटो को देखकर समझ जाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ज्यादा लिखना लिखाई नहीं रहेगा, कम लिखाई रहेगा, ज्यादा लिखना लिखाई नहीं रहेगा, कम लिखाई रहेगा। विजुअल फोटोग्राफ ज्यादा रहेगा, उसको क्या लेना है, और उससे पूरा समझ जाए कि आप बोलना क्या चाहते हैं, उसको क्या लेना है। So this is the thing that you have to. So this is the thing that you have to think कि actually आप उनके मोबाइल में घुस जा रहे हैं, उनका डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट कर दें। उनका पसंद नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दें, अनलाइक कर दें। यदि उनका पसंद होगा तो आपको पड़ेगा ही नहीं, यदि उनका पसंद होगा तो जरूरी है कि आपको जानना है कि जो यूजर, तो आपको तो सबसे बड़ा जरूरी है कि आपको जानना है कि जो यूजर है वो क्या चाहता है, क्यों इंटरनेट में आया है, कौन सा प्लेटफॉर्म में आया है। कोई यूजर जो है वो एक, अब कोई यूजर जो है वो एक कोई बुक ब्राउज कर रहा है, मैथमेटिक्स का बुक, मैथ्स का बुक शायद पढ़े, यदि उसमें हम मैथ्स का हम ऐड डाल दे तो शायद पढ़े, उसमें भी मैथ्स डाल दूं। आप कोई गेम ब्राउज कर रहा है उसमें भी मैथ्स डाल दूं तो लाइक करने का चांस तो बहुत ही कम है। 1% चांस से लाइक करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई द यूजर आर ऑन ऑनलाइन, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लेस योर एड। सो व्हाट इज योर प्रोडक्ट, you have to understand what is your product, you have to understand your product also, that what is the product aspect and the local advantage to whom you are targeting. So what the constant growth of wave, did you see the, so what the constant growth of wave, did you see the proper day by day due to the proper encouragement in the internet and easy tools, availability of the mobile device at cheapest rate. जैसा सस्ता में मोबाइल फोन अब हाथों हाथ में पहुंच जा रहा है, तो जो साधारण आदमी का हाथ में ही मोबाइल है और इंटरनेट पैक ले लिए हैं, सब खोज रहे हैं, देख और समझ रहे हैं, खोज रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे। मोबाइल बेस है और यदि आपका एप्लीकेशन मोबाइल बेस है और तो आप लगभग इंडिया में
85% आदमी के पास पहुंच पा रहे हैं। यदि आपका पहुंचने का तरीका ठीक है, डायनेमिक है, वेल इजी है, डायनेमिक है, कम समय में वेल एक्सप्लेन्ड है, कम समय में, तो आप विजुअली अच्छा एक्सप्लेन है, तो आप जरूर सक्सेस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से भी तो आदमी लेकिन घबरा जाता है। लेकिन कम विजुलाइज देने से जगह में अच्छा विजुलाइज देने से, विजुलाइजेशन देने से, फोटोग्राफिक इम्पैक्ट देने से, कम एनिमेशन देने से कम समय में ज्यादा समझाया जा सकता है। तो हम लोग का जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है क्या है, पेपर प्रिंट। हम लोग का जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है क्या है, पेपर प्रिंट करते हैं, हैंड लिपलेट देते हैं, बहुत सारे और करते हैं, बहुत सारे और इवेंट करते हैं, कुछ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, और उनको कंज्यूमर को कंट्रोल करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं यदि सामने आते हैं तो बहुत सारे लिमिटेशंस है ऑन बैकग्राउंड ऑफ, इसका बहुत सारे लिमिटेशंस है ऑन बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट, ऑन बैकग्राउंड ऑफ टाइम, वो आपके पास आएंगे, फिजिकली मिलेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये सब चीज जो है कि आपका ट्रेन से ही ब्राउज कर रहे हैं, टाइम तो अपना जगह में ट्रेन से ही ब्राउज कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं उसी टाइम में ब्राउज कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं तो उनको तो आपको पता नहीं है, वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं। These are the plus point। काम करते हुए आपका मार्केटिंग का एड, खेलते धुलते अपना काम करते हुए आपका मार्केटिंग का एड करने जा रहे हैं तो उनको अपना काम छोटा, लेकिन ट्रेडिशनल आप जब करने जा रहे हैं तो उनको अपना काम छोटा आपके पास आना पड़ेगा। बात है आज का जो वो तो गतिशील दुनिया बात है, आज का जो गतिशील दुनिया जो है, डायनेमिक वर्ल्ड, फास्ट वर्ल्ड, इसमें तो टाइम निकालना ही सबसे बड़ा चीज है, रुपया से ज्यादा कीमत है। तो ये जो बार बार जो आज नहीं है कल आएंगे, आज थोड़ा समय, ये जो बार बार जो आज नहीं है कल आएंगे, आज थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लग गया, फिर दूसरा जगह समझेंगे। ये लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तो मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ते जाता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में तो अपना घर से ही बैठकर देख लेता है और आपके ब्रांड वहीं से जाकर देख लेता है और आपके ब्रांड को पहचान लेता है। आपका ब्रांड एक्चुअली क्या है, क्या उसमें कितना विश्वास कर सकते हैं, आफ्टर सेल सर्विस कितना बेटर है, उसके बाद सर्विस ठीक दे पाएंगे, माल खरीदने के बाद उसके बाद सर्विस ठीक दे पाएंगे। दीज आर द थिंग, दीज आर द थिंग जो कंज्यूमर जो है आपको रीड करता है, मेजर करता है, तब आपका प्रोडक्ट लेता है और आपका सेल बेनिफिट होता है। तो आपको पता ही है कि डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम, यदि आपका यूटिलिटी टूल अच्छा से यूज करते हैं तो बहुत ही कम पैसे में मार्केटिंग हो जाता है, डिस्टेंस में भी मार्केटिंग हो जाता है। कि आपको समझना है कि तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको समझना है कि ऑब्जेक्टिव में जो कैंपेन का जो है आपको जानना है, मेनली जो 5 ऑब्जेक्टिव जो कैंपेन का जो है आपको जानना है वो है क्या है कि रीच टू राइट ऑडियंस। फुटबॉल प्लेयर के लिए आपको, जो आपको पहले बोले थे कि फुटबॉल प्लेयर के लिए आपको हॉकी प्लेयर पर सॉक्स बेचना है, बैडमिंटन आप हॉकी प्लेयर पास चले गए, या आप लेकिन आपका शौक बैडमिंटन प्लेयर पास चले गए, लेकिन आपका शौक फुटबॉल के लिए बेस्ट है, तो आपका हॉकी प्लेयर के पास उतना अच्छा राइट चॉइस नहीं है, आपको फुटबॉल प्लेयर के पास ही चॉइस बेटर रहेगा। इंगेज विद ऑडियंस, जब वहाँ पहुंचेंगे, इंगेज विद ऑडियंस, जब वहाँ पहुंचेंगे, जब कोई फुटबॉल प्लेयर आपका शॉक्स को देखेगा, समझेगा कि नहीं ये फुटबॉल के लिए पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिव है, आप कैसे बताया जाए, तो उसको कैसे इंगेज किया जाए, उसको आप कैसे बताया जाए। इंगेजमेंट करना भी एक बहुत बड़ा चीज है, तो इंगेजमेंट करना भी एक बहुत बड़ा चीज है, जिससे आपसे और ज्यादा फार्दर हो बातचीत सोचना चालू करे, आपसे बातचीत करेगा तो उसको मोटिवेट करना है। उस बाद वो जो बातचीत करेगा तो उसको मोटिवेट करना है कि इस शौक से आपको ये मिला है, वो मिल रहा है, आपका हेल्थ हैजर्ड, आपका स्मेल,
जो जो आपका बेनिफिट, आपका एस्पेक्ट है प्रोडक्ट का, उससे उसको मोटिवेट करना है, जिससे उसका चारों तरफ से प्रगति हो सकता है और चारों तरफ से समझाना है कि इसमें खर्चा करना, और उसको समझाना है कि इसमें खर्चा करना भी बहुत ही वायबल है, इकोनॉमिकल है। तभी तो आपका मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। दैट इज व्हाट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। तो these are the key aspect that थिंक द डिजिटल मार्केटिंग का जो है कि आप जो देखिए यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है बहुत सारे है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, कांस्टेंट कांटेक्ट, ईमेल वाला टूल्स है, देखा ना, MSN है, माइक्रोसॉफ्ट का है, याहू है, फेसबुक है, रेडिट है, स्लैशडॉट है, ब्लॉगर्स है, सब देख रहे हैं कि मार्केट वेयर जो है, AOL है, अमेरिकन ऑनलाइन। So these are the tools that we can use for social media marketing. The key component. These are the components, tools that we can use to interact through and go through search engine optimizations, pay-per-click, social media marketing, email marketing, and display advertising, banner ad marketing. These are the tools. कि वेबसाइट डिजाइन अच्छा करेंगे, वहाँ से मार्केटिंग होगा। सर्च इंजन ऑटोमेशन करेंगे, जो बोले तो स्पेशल कोर्स है, वहाँ से मार्केटिंग होगा। पर पे क्लिक एडवर्ड देंगे, बिंग ऐड देंगे, वहाँ से मार्केटिंग होगा। फेसबुक ये सब करेंगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाएगा। ईमेल मार्केटिंग करेंगे, ईमेल करेंगे तो ईमेल मार्केटिंग हो जाएगा। एंड बैनर एड मारेंगे। तो दीज आर द टूल्स के मार्केटिंग करेंगे। सो सर्च इंजन ऑटोमेशन का जो है कि उसको जानना है कि सर्च इंजन ऑटोमेशन का जो है कि उसको जानना है कि अच्छा है क्या। एक ट्रैफिक होता है, कहाँ से कहाँ जाएंगे, एक ट्रैफिक होता है, घर से निकलेंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे। आप यहाँ से घर से निकलेंगे, स्कूल जाना है, फास्ट है, कौन सा ट्रैफिक में जा सकते हैं, कौन सा ट्रैफिक फास्ट है, कौन सा ट्रैफिक जाम है, किस डिस्टर्बेंस है, बैठकर जाएंगे, किस ट्रैफिक में बैठकर जाएंगे, कौन सी गाड़ी में बैठकर जाएंगे, पैदल जाएंगे। सो दीज आर द थिंग दैट फ्री फ्रॉम द फ्री ऑर्गेनिक एंड नेचुरल लिस्टिंग ऑफ दिस सर्च इंजन। इसमें क्या होता है कि सर्च ऑटोमेशन में को लिस्टिंग करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि सर्च ऑटोमेशन में को लिस्टिंग करना पड़ता है। भाई आपके पास कोई आता है तो उसको आप मापते हैं, भाई आपके पास कोई आता है तो उसको आप मापते हैं कि इसका आदमी समाज में कितना आदमी से जोड़ाजोग है। यदि वो काउंसलर है तो उसको ज्यादा आदमी से जोड़ाजोग है तो उसको आप इज्जत ज्यादा देते हैं। यदि ऑर्डिनरी आदमी है उसका बेटा उससे पूछता नहीं है, उसको इज्जत कम देते हैं। गूगल में हम गए हैं तो गूगल क्यों नहीं देखेगा, गूगल में हम गए हैं तो गूगल हमको रीड करेगा कि आदमी कौन है, इस आदमी से कितना आदमी का जोड़ाजोग है, इससे आदमी ज्यादा आदमी का जोड़ाजोग है तो इसको अलाउ करो थोड़ा ज्यादा देखने के लिए। आप बोल रहे हैं कि हमारा काउंसलर बोलेगा ना, इस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हमारा काउंसलर आएगा तो उसको चाय पिलाएंगे, साधारण आदमी आएगा तो उसको चाय भी नहीं पिलाएंगे। गूगल तो ही करेगा, एक बार बात करके भगा देंगे। MSN तो गूगल तो ही करेगा ना, MSN तो ही करेगा ना। कोड ऑफ इंडिया आया, कोड ऑफ इंडिया में तो यदि देखेगा कि कोड ऑफ इंडिया आया, कोड ऑफ इंडिया में 50,000 आदमी डेली बातचीत करता है, तरक्की होगा। कोड ऑफ इंडिया तुम ज्यादा करो, हमारा तरक्की होगा, हमारा भी नाम फटेगा। तो उसके लिए हम लोग को बहुत सारा लिंकिंग करना पड़ता है, लिस्टिंग करना पड़ता है, जिससे अगला समझ पाए कि देखो भाई हमारा 10,000 जगह लिस्टिंग है। मैं आपको थोड़ा देर बाद लिस्टिंग को समझाऊंगा, जिसके लिए आपको लेक्चर बनाया हूँ। आप कैसे लिस्टिंग कीजिएगा, हमको 50,000 1 लाख लिस्टिंग करना है, तो आपको लिस्टिंग करना है, बहुत बड़ा काम है और ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग इसीलिए जरूरत है। यानी कि गूगल ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग रहेगा, यानी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपका MSN, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, याहू जान पाएगा कि हाँ इसका लिस्टिंग इतने ज्यादा आदमी से जोगाजोग है, इसको थोड़ा सुविधा ज्यादा दिया जाए, चाय पिलाया जाए, मिठाई भी खिलाया, आए हुए तो बात समझे, उसके साथ मिठाई भी खिलाया। ज्यादा लिस्टिंग करेंगे उतना, बात समझे, जितना ज्यादा लिस्टिंग करेंगे उतना हम लोग को इन्विटेशन अच्छा मिलेगा। तो उससे हम लोग का क्या होगा, हम लोग का रैंक बढ़ेगा। आप जो देख रहे हैं कि आप गूगल में सर्च मारते हैं, तो
ऑटोमेटिक एक सेकंड में कई 1,000 लाख करोड़ सर्च हो जाता है उस कीवर्ड। और वो सर्च होता है विथ रैंकिंग, और सर्च होता है विथ रैंकिंग। रैंकिंग हिसाब से पहला में वो वाला आएगा, दूसरा में ये वाला आएगा, तीसरा में ये वाला आएगा। वो पहला दूसरा तीसरा, पहला में 1 नंबर में कौन आया जिसका रैंकिंग अच्छा है, 10 नंबर में कौन आया जिसका रैंकिंग कम है। जितना शक्ति होने के लिए उतना ज्यादा लिंक होना, तो आपका जितना शक्ति होने के लिए उतना ज्यादा लिंक होना पड़ेगा। आपको जो काम करना है वो लिंक आपको बनाना है, आपको जो काम करना है वो लिंक बनाना है। दिस इज ऑर्गेनिक सर्च। आप कोई सर्च करते हैं यहाँ मारते हैं, देखिए दिस इज ऑर्गेनिक सर्च। आप कोई सर्च करते हैं यहाँ मारते हैं, देखिए यहाँ क्या बोला सर्च इंजन ऑटोमेशन में। यहाँ देखो कि 16 सेकेंड में 30 लाख 30,800,000 सर्च हो गया 16 सेकेंड। तो प्रायोरिटी ये जो देख रहे हो कि यहाँ जो ये जो चीज आया ऊपर में जो आया हुआ है, ये क्या है, ये अगला लोग बैनर बनाया है, ये ऐड दिया है, तभी ये आ गया। सर्च ऑटोमेशन का जो यहाँ जो सर्च मारे हैं, सर्च इंजन ऑटोमेशन इसका रैंकिंग देखो, एक कीवर्ड को सर्च मारे हैं, इसका रैंकिंग देखो 1 नंबर में। ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, ग्रीन कलर का जो है, ये लोग ऐड मारा है, लोग पैसा दे रहा है। यदि हमें क्लिक कर देगा तो पेपर क्लिक उसका पॉकेट से निकल जाएगा। जो कंपनी ऐड मारा है, ये जो टॉप रेटेड एसईओ फर्म, वो जो ऐड मारा है यहाँ, उसको यहाँ क्लिक कर देंगे ना तो उसको पैसा पॉकेट से निकल जाएगा। पेपर क्लिप के हिसाब से उसको पेमेंट करना है। तो ऐड में ये टॉपिक्स है, देखो यहाँ देखो एक्सपर्ट सर्च इंजन ऑटोमेशन, तभी यहाँ सर्च किए हैं तो इसका यहाँ दाना तरफ आ गया। जो टॉप में जो इसका भी अच्छा मैंने जो बिड किया है, अच्छा बिड किया तभी ये टॉप में है। बिड अमाउंट ऑक्शन होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ बिड होता है। जो जैसा बिडिंग करेगा आपको ऐसा रैंकिंग हो जाएगा। जिसका जितना अच्छा की रहेगा, बेटर पोजीशन में रहेगा, कीवर्ड उतना बेटर पोजीशन में रहेगा। ये तो ऐड वाला हो गया, ये ग्रीन कलर जो देख रहे हो। और सर्च इंजन ऑटोमेशन में देखो कि ये जो देख रहे हो ये वाला पोर्शन, इसमें देखो इसका रैंकिंग 1 है, इसका रैंकिंग 2 है, रैंकिंग 3 है, रैंकिंग 4 है। माने इन लोग का इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है, इन लोग का कीवर्ड बहुत अच्छा है, उस हिसाब से रैंकिंग 1 में आ गया, रैंकिंग 2 में आ गया। रैंकिंग में सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीज है, सबको जोड़ करके एक तो मिलता है। जिस प्रकार से आप स्कूल में टोटल ओवरऑल मार्कशीट मिलता है, तो आपका अटेंडेंस देखता है, आपका हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स देखता है, आपका बिहेवियर देखता है, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखता है, सबको एब्सट्रैक्ट तो रैंक दे देता है आपको। बस ये रैंक भी वैसा ही है, डीप में नहीं जाना है, बस आप अंदर बहुत सारे कैलकुलेशन है, उतना डीप में नहीं जाना है। बस आप समझ लो कि रैंक 1 में, रैंक 2 में, रैंक 3 में बहुत सारा पैरामीटर है कैलकुलेशन का, बहुत बड़ा चीज है, तो मैथ्स का बात है, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको पर प्ले क्लिक का आप समझ गए, राइट साइड में जो आया था, हाँ उसका डेफिनेशन आप समझ गए कि मैंने जैसा आप बिडिंग कीजिएगा, जैसा अमाउंट पर डे बजट रखिएगा, वैसा आपका पर क्लिक का चार्ज लगेगा, ठीक है। और पर क्लिक से आपको सक्सेस मिलेगा। इज वेरी फास्ट, वेरी डायनेमिक, विद इन आवर आपके पास बहुत सारा तो ये आ जाएगा, ठीक है। मैं आज को तो दिखाने वाला हूँ वो है कि मैं आज को जो दिखाने वाला हूँ वो है कि आपका सेल्स जो है पे रिगार्डलेस ऑफ सेल्स और कंपटीशन जो है कि कीवर्ड जो है आपको खोजना है। बाद में एसईओ का जब पढ़ाएंगे तो कीवर्ड के बारे में समझाएंगे, हाउ टू कीवर्ड टूल्स कहाँ से मिलेगा, कैसे सर्च करेंगे, और देख रहे हैं ना इस प्रकार से आपका मल्टीमीडिया देख रहे हैं ना कि मल्टीमीडिया मार्केटिंग में क्या क्या कर सकते हैं। आपको तो बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा कोर्स है, आपको तो बेसिक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मेनली जो है मतलब मार्केटिंग में आप क्या कर पाएंगे, आपको जो काम करना तो मेनली जो है कि आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, आपको जो काम करना है कि हमारा ये देखिए ये फाइल जिला है, हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और इधर देखिए कि हमारा ये विजुअल स्टूडियो का जो फाइल है, यदि हम इसको मारते हैं कि यहाँ देखिए कि हमारा यहाँ वेबसाइट खुला हुआ है, नीचे में ऐड है, इसको मैं अभी सजाया नहीं हूँ, दिस इज नॉट ए गुड वे, इसको सजाना है। अभी जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाद में सजाऊंगा।
तो इसको सजाने के लिए कुछ नहीं करना है, बाद में हम इसको CSS से इसको अच्छा से सजा दूंगा। अभी हमको मार्केटिंग को आपको सिखाना है कैसे आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो मैं ये जो है कि मैं दिखा रहा हूँ आपको काम करना है इस पेज में। आपको काम करना है एक दूसरा पेज में। इतना जो काम हुआ है मैं इधर आपको दिखाता हूँ। आपको करना है काम। अभी मैं इधर मारता हूँ अपना वेबसाइट में, लर्न में मारता हूँ। आपको लर्न में काम करना है, ठीक है। तो लर्न में मारता हूँ। लर्न पेज में देखिए नीचे कुछ नहीं है, नीचे में जो है पूरा कोर्स का स्क्रीन है, ऐसे नहीं लगा हुआ है और कुछ लगा हुआ नहीं है। मैं इसको मैं इधर में प्रोग्राम में जाता हूँ, इधर का प्रोग्राम में जाकर लर्न पेज में मारता हूँ। लर्न पेज मारने के बाद नीचे डिजाइन पेज जाके नीचे जाकर पेस्ट कर देता हूँ। खुल रहा है देखो, जो माउस देखो खुल रहा है ना फाइल। इसको जाकर नीचे जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। नीचे जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ जाता हूँ, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पेस्ट हो गया। यहाँ आपका पूरा शायद 2 बार पेस्ट हो गया, क्या देखना है। हाँ, लग रहा है 2-3 बार पेस्ट हो गया, क्या अनडू करता हूँ। आपका चलो यहाँ डाल देता हूँ Ctrl+V। कैसे बैठ गया? तो पूरा पेस्ट हो गया, इसको मैं सर्वर में भेज देता हूँ। तो पूरा पेस्ट हो गया, इसको मैं सर्वर में भेज देता हूँ। यहाँ में है तो हमारा यहाँ देखो, यहाँ से एक कंप्यूटर साइड है, हम लोग का कंप्यूटर साइड है, ये सर्वर साइड है। जो हम पेस्ट किया हूँ इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। इसको मैं भेज देता हूँ अपना वेब सर्वर में। ये बोल रहा है चेंज करना है, चेंज कर दिया। अब देखो हमारा वेबसाइट में क्या था, वहाँ नहीं था, लर्न में अब मारता हूँ, पूरा आ गया, ठीक है। लोड ले रहा है, लोड घूम रहा है, लोड ले लिया। पूरा पेज लोड होने के बाद नीचे सब आ गया ना। अब हमको जनाना है, ये सब वैसे तो जनाना है कि देखो भाई हम अपना तुम्हारा ऐड यहाँ डाल दिए हैं, तुम हमको पहचानो। बात समझे, वही आपका काम है। देखिए जो मार्क डाल दिए हैं, तो यहाँ तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में नाम नहीं है ना, यहाँ नाम घुसाना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लासेस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लासेस। ओके, थैंक यू।